ओके ओके, बस हो गया, समझ आ गया मुझे। We started with the reproduction in animals. Yesterday we discussed what do you mean by reproduction, what is reproduction, modes of reproduction, ठीक है, sexual and asexual reproduction. So sexual methods में there is the involvement of the gametes and there are no gametes in the asexual mode of reproduction. Okay, so gametes they are given by the male organs, ठीक है, the male gametes, and the female gametes they are given by the female reproductive organs. Okay, so we was discussing about the male reproductive system. Okay, so the parts of the male reproductive system are so they are testes, sperm duct, urethra and penis. Okay, so firstly if we talk about testes, they are 2 in number, इसलिए हम इनको plurals में लिख रहे हैं. अगर आपने singular लिखना है then you replace e with I, that is a singular name. Since they are 2 in number, plural है, ठीक है, तो pairs में है इसलिए हम TES लिखते हैं. Okay, so what is their function? They help in the production of sperms. Yes, sperms are actually the male gametes. And they also produce a hormone that is called as testosterone. That is the male hormone, ठीक है, तो testosterone. जो testes हैं they are actually packed in a muscular pouch, उसको हम क्या कहते हैं, scrotum कहते हैं. Okay, very good. So scrotum, the muscular pouch is known as scrotum and they act as a thermoregulator. जो आपके स्क्रॉटम है वो थर्मोरेगुलेटर की तरह काम करते हैं. जो टेस्टिस को 1 to 3 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए होता है, ये उसको मेंटेन करके रखते हैं. ओके, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, राइट. And the normal production of the sperms it starts from the age of 14 to 15 years. Okay, so when these hormones they are active nearly at the age of 14 to 50 years, ठीक है, ये जो hormones हैं ये start हो जाते हैं. Okay, and the production of the sperms it is continuous throughout their life, stop नहीं होती है, ठीक है. The males they continuously produce the sperm throughout their life, right. And a healthy male it can produce sperms up to 2 billion a day. In a single day 2 billion sperms they can be produced. Okay, where each sperm is divided into 3 parts. The structure of the sperm it is divided into 3 parts: head part, middle part and the tail part. Okay, the structure of the sperm is divided into 3 parts: head part, tail part and the middle part. हाँ, middle piece, middle part. हाँ जी, sperm का structure पहले शुरू किया, ठीक है जी. So let's draw the structure of sperm firstly.
So you can make along with me. This is the structure of sperm. So firstly, we will be starting with the top part. Okay. आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, शेड भी कर सकते हो. So this is the head part. This is the middle piece or middle part. And this is the tail part. This is the axial filament. ड्रॉ कर लो उसको. हाँ जी, क्लियर है बेटा. टेल एज प्रोपेलर. प्रोपेलर मींस मूवमेंट में हेल्प करती है. जो आपके स्पर्म्स हैं, हाँ, PROPELLER, प्रोपेलर. मतलब ये सारा टेल पार्ट ही है उसका. टेल इतनी सी होगी जितनी होगी. प्रोपेलर मींस एनीथिंग दैट हेल्प्स इन द मूवमेंट. तो स्पर्म्स को मूव करने में कौन हेल्प करता है? उसका टेल पार्ट जो है वो हेल्प करता है. माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, स्पर्म्स को. एक्रोसोमल कैप प्रोटेक्शन के लिए है, राइट. एक्रोसोमल कैप इज फॉर द प्रोटेक्शन. डीएनए के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? डीएनए दैट कंटेन्स द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन. ओके, the hereditary information that will be stored here in the nucleus that actually contains DNA.
हाँ जी, एनीथिंग बेटा यू जो आपने पूछनी है? क्लियर है सारे फंक्शंस? एक्ट्रोसोमल कैप कैप प्रोटेक्शन के लिए है, न्यूक्लियस के अंदर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है जो ट्रांसफर होगी, ठीक है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया विल प्रोवाइड एनर्जी, एक्सियल फिलामेंट है एंड टेल है। टेल जो है वो एज अ प्रोपेलर का काम करेगी, स्पर्म्स को मूव करने में हेल्प करेगी। फिलामेंट जस्ट, हाँ, इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट राइट डाउन। ओके बना लो बेटा, कोई बात नहीं, बना लो। डायग्राम्स अच्छे से बनाने हैं ताकि नोटबुक्स में कोई गलतियां ना हो आपकी बेटा। आगे बनाएं बेटा। पार्टिसिपेंट 3 ईशान, सिमरप्रीत एंड माधव कपूर। चलिए नेक्स्ट राइट डाउन। सेकंड पार्ट कौन सा है? मिडिल पार्ट है ना उसका, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा इसके साथ एक और चीज लिख लो, एपिडिडाइमस। राइट डाउन एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस लिखने लगी हूँ, ये रब तो कर दो रब। टेस्टिस के साथ ही है। एपिडिडाइमस, ठीक है। इट इज अ कॉइल्ड ट्यूब एक कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज एक्चुअली अटैच्ड टू द टेस्टिस। Okay, that is called epididymis. So what we have studied about the testes? Who is going to repeat? Hanji Harman. Right. Okay, so testes they are oval in shape. Second thing. Very good. And these are located outside the abdominal cavity. Right. Their main function is to produce sperm. Very good. So sit down. टेस्टिस का मेन फंक्शन है स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना, और वो स्पर्म जो है वो टेम्परली स्टोर किस में करते हैं? एपिडिडाइमस में। ओके, द स्पर्म्स दे आर स्टोर्ड टेम्परली इन एपिडिडाइमस। ओके, जो स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए कहां पर स्टोर करते हैं? एपिडिडाइमस में, ये कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर में। क्लियर? नेक्स्ट राइट डाउन स्पर्म डक्ट। नेक्स्ट राइट डाउन स्पर्म डक्ट, और क्या कहते हैं इसको? वेरी गुड। DEFERENS है, ठीक है। स्पर्म डक्ट, हाँ RENS। स्पर्म डक्ट, डक्ट मीन्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज देयर, उसको हम डक्ट कहते हैं।
स्पर्म डक्ट है, यानी कि ये किसको ट्रांसफर करेगी या किसको कैरी करेगी? स्पर्म्स को। ओके, सो दैट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन विच द स्पर्म्स दे विल बी मूविंग. ओके, सो यू कैन राइट डाउन it is a narrow duct, DEFERENS. So it is a narrow duct जो कहाँ से स्टार्ट होगी? देखो स्पर्म्स कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि ये टेस्टिस से स्टार्ट होगी और खत्म कहाँ तक होगी? यूरेथ्रा तक. Okay, so it is a narrow duct that starts from testes and it will end at urethra, and it carries the sperm. Okay, this duct, it carries the sperm. This duct carries the sperm. Okay, here in the sperm duct there are some of the fluids. ठीक है, कुछ liquids होते हैं that are mixed with the sperm. Sperm में कुछ fluids जो हैं वो mix हो जाते हैं that actually provide the energy, ठीक है, and nutrition to the sperms. ताकि जो स्पर्म्स हैं वो सरवाइव कर सके लॉन्गर टाइम के लिए. तो ये फ्लूइड जो है ये उनको क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, नरिश करता है उनको. ओके, सो दैट दे कैन स्टे लॉन्ग. तो स्पर्म्स प्लस जो फ्लूइड है ये कहाँ से आया? ये फ्लूइड कहाँ से आया? स्पर्म डक्ट से. ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सीमेन. semen, SEMEN, semen. Okay, semen. Okay, so this fluid, it actually provides what to the sperms? Nourishment. Okay, now you can write down next. अब उसके बाद नेक्स्ट कौन सा बेटा? Urethra. See the excretory system there. You can see urethra. ठीक है, that is the narrow opening from where you pass the urine. ठीक है, narrow opening है जहां से यूरिन जो है वो बाहर आता है. So write down. Okay, यूरिथ्रा कहाँ से अराइज हुआ है? ब्लैडर से. कैन यू सी इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम? जो आपके पीछे चार्ट लगा हुआ है, जो यूरिथ्रा है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दैट एक्चुअली ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर. ओके, so you can write down, it is a long tube that arise from, कहाँ से arise हुई? Very, that arise from the urinary bladder. Now urethra, it carries two things. Okay, एक तो यूरिन हो गया, right, and second is sperm. अभी बताया ना आपको? हाँ, नहीं, यूरिथ्रा. सी, टेस्टिस में प्रोड्यूस हुए. ठीक है, स्पर्म डक्ट से कहाँ तक आएंगे? यूरिथ्रा. यूरिथ्रा तक आए, यूरिथ्रा से ओपनिंग्स में, बाहर ओपनिंग्स में जाएंगे. ओके, सो यूरिथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ ऑफ द थिंग्स, यूरिन और स्पर्म्स. ठीक है, और यहाँ से ये क्या हो जाएंगे? बाहर रिजेक्ट हो जाएंगे. तो नेक्स्ट राइट डाउन, पेनिस.
हाँ जी बेटा, पी से बेटा, PENIS, PENIS लिखवाया है मैंने कल. So it is a long and thick muscular organ. It is long and thick muscular organ that is used to inject the sperms. That is used to inject the sperms. Inject. Inject the sperm into the female's body. Into the female's body. Okay. So all the 4 parts are done now. So let's move to the structure. Female reproductive system, male reproductive system. चलिए साथ साथ में ड्रॉ करना है मेरे. ओके, कोई भी डाउट हुआ तो पूछ लेना. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जो ये सारी चीजें पढ़ी हैं, ये अरेंज कैसे हैं वो नहीं पढ़ना हमने. तो मैंने स्पर्म से दिखाया है ना, स्पर्म डक्ट नहीं ना शो की, यूरेथ्रा कहीं पे नहीं शो किया, तो वही सारी चीजें शो करेंगे. यस. सो ड्रॉ द स्ट्रक्चर विद मी. जैसे जैसे मैं ड्रॉ करूंगी आपने वैसे वैसे ड्रॉ करना है. ओके. सबसे पहले हमने एक एस ड्रॉ करना है लाइक दिस. Draw the structure like this. बन गया. आप पहले बनाओ तो सही, तो सारा एक्सप्लेन हो जाएगा साथ में. हो गया यहाँ तक. अब इस स्ट्रक्चर को सारा डबल कर दो. Now see here. इसको यहां तक लेके आना है. ठीक है. और ये वाला जो एंड है इसको गोल कर देना लाइक दिस. ठीक है. जितना मैं बना रही हूँ आप उतना बनाओ साइड बाय साइड. डन टिल नाउ. यस. हो गया इतना. बना लो, कोई बात नहीं. किसको?
बोला तो पहले भी सिंगल ही था बेटा। यहाँ पर ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, मेक श्योर। ठीक है, सर्कल से और ये जो आपने ट्यूब बनाई है यहाँ से ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, शॉर्ट डिस्टेंस शुड बी देयर। डन यहाँ तक? So these are the muscular pouch. This is the muscular pouch. This is testis. That is the muscular pouch. हाँ, स्क्रॉटम है ना ये। This is scrotum. बेटा वी आर शोइंग द साइड वाइज व्यू, ठीक है? तो ये स्क्रॉटम शो कर रहा है। अब जो आपने यहाँ पर एक लाइन छोड़ी हुई है ना डबलिंग वाली, उसको यहाँ से ऐसे बनाना शुरू करो, लाइक दिस। और ये जो आपने बनाया है that is called epididymis. That is actually attached to the testes where the sperms they are stored temporarily. आगे बनाएं। Cooper's gland. Cooper's gland. COWPER. This is what? इसको थोड़ा सा इधर करके बना लेना, मेरे स्पेस कम है। बेटा ग्लैंड है, कूपर्स ग्लैंड। बेटा जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्लूइड है जो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, वैसे ही ये ग्लैंड्स में से कुछ सेक्रीशंस आती हैं जो स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। बस एक कूपर्स ग्लैंड है और एक सेमिनल वेसिकल है।
yes, yes. Prostate gland. बेटा अभी बताया, ये बेसिकली उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, बस ग्लैंड्स हैं. आप इसको स्क्रोटम भी लिख सकते हो और स्क्रोटल सैक भी लिख सकते हो. स्क्रोटम को क्या सीट पे बैठो, तंग मत करो. बहुत बहुत साइड देखने दे उनको. में गो बेटा.